सर हाँ जी बोलिए। सर कल मैंने आपको वो भेज दिया था जो आपने कराया था। देखा था, मैं देखा था। आपको कोई डिफिकल्टी आई उसमें सॉल्व करने में, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, वैसे तो नहीं आई। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी, अदिति साईराम। So, Sairam sir. let us begin with the chanting of Omkar 3 times. Sairam. So today we are starting a new chapter, that is social responsibility and business ethics. As I have already discussed with you that business ethics part is being deleted for this year. So out of 3 topics of this chapter, first topic is social responsibility, second one is the business environment or environmental protection, and third one is the business ethics. So business ethics is totally deleted, and in this social responsibility and environment also some topics are deleted. They are not complete. All topics are not there. That we will discuss later. Which topics are deleted from them. So this concept of social responsibility of business. So when we were discussing objectives of business, we discussed 2 types of objectives. Objectives of business can be classified into 2 sections broadly: social objectives and economic objectives. 3 categories are there basically. Economic objectives, that is called organizational objectives, and then social objectives and personal objectives. So far as organizational objective is concerned, that we can say that is mainly profit earning, profit motive. So for organization, what a business is supposed to do. If I am a businessman, what do I expect from my business? What is my expectation from my business? Can you tell? Earning profit. What does a business? Earning profit, definitely. Ultimate purpose of business is to earn profit. So that is the organizational objective. Means what business is supposed to do for the owners. So owners expect what, or in other way around we can say, what are the expectations of owners from the business. So owners of the business expect that business should earn as much as profit as possible. So that is the expectation of owners, and for that we discuss different objectives of business, that were market standing or innovation or productivity to be increased, and the physical and financial resources are to be assembled, employees' performance is to be improved, managers' performance is to be improved. That all is a part of the one final goal, that is the earning profit. So this all will help in earning profits. So organizational objective or economic objective of business is earning profit. But business cannot run only by owners. Business needs to interact with other sections of society also, or business needs help of other sections of society, without which it is impossible to run a business. For example, can a business run without employees? Maybe a small business, sole trade can run, but definitely not a large size business. Can a business run without customers? Okay. Can a business run without suppliers or creditors and financiers? No. So these all form the society for a business. Not only the owners, but all these stakeholders which are directly or indirectly involved or related to the business, they are called society for a business. Means business interacts with these elements of the society, and resources are exchanged between these elements of the society. For example, employees provide their services to the business, and in return they get the salaries or wages from the business. Customers buy the product of the company or organization,
and they pay the price for that product or service. Suppliers or financiers, sorry, suppliers provide materials or goods to the business. They get payment for their services or products. Financiers or banks, they provide funds for the business and they get interest from the business for their returns. So this way, business has to interact with many sections of the society. So concept of social responsibility says that business should conduct itself or business should take such decisions which are in benefit of society. Business should take such decisions which are in the interest of the society. So business should not only think of the owners, or directly we can say business should not only think of maximizing the profit, but at the same time it should keep in mind the interest of other stakeholders which are involved in the business, directly or indirectly. That is called as social responsibility of the business. Okay, so in general we can say not only business motive is to earn profit, but it should think of the interest of other sections of the society. So whatever decision business takes, whatever policies a business makes, they should not only fulfill the requirements of the owners, but they should also take care of the interest of other sections of the society, which are internal or important part of the business, without which business cannot survive. That is called as social responsibility of the business. Okay, are you understanding? But this social responsibility is a very confusing concept. It is related somewhere to ethics or morality. It is more of moral in nature. It is not legal. Legal liability is less. आपको पढ़ा था मैंने types of liability. एक होता है क्या था इकोनॉमिक, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? नहीं पढ़ा था हम लोगों ने, इसी चैप्टर में आएगा शायद, हो सकता है. तो एक होता है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक होता है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. What is the difference between moral responsibility and legal responsibility? If you don't fulfill your legal responsibility, there is a provision of punishment. If you don't fulfill the legal responsibility, there is a provision of punishment. Means if we don't follow any law or any provision of law, then we are liable to be punished. Are you understanding? जैसे किसी को इनकम टैक्स देना है, उसने इनकम टैक्स नहीं दिया तो क्या करेंगे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले रेड करेंगे, पकड़ेंगे उसको, फाइन लगाएंगे, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है उसकी. दैट ऑल इज पॉसिबल, है ना? सो दैट लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज द बैकिंग ऑफ स्टेट, बैकिंग ऑफ द गवर्नमेंट, बैकिंग ऑफ द लॉ, और इनडायरेक्टली वी कैन से लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इन्फोर्स्ड बाय गवर्नमेंट, है ना? एनफोर्समेंट एजेंसीज, लीगल एजेंसीज, सो दे आर देयर टू इम्प्लीमेंट or make the people to follow the legal responsibility. Social responsibility is more of voluntary in nature. It's more of voluntary in nature, and there is no direct punishment for non following the social responsibility. If someone does not follow the social responsibility, then there is no direct punishment like legal responsibility. Legal में क्या है कि अगर एक काम नहीं करोगे तो punishment है. So that type of obligation is not there in case of social responsibility. Though some implications are there, it will take its own what we say action, but in a different way. It is not visible, it's not direct, but it is indirect. For example, it is said that business should charge fair prices from the customers. This is the part of social responsibility of a business towards customers. So social responsibility of business towards customers says that business should take fair prices, charge fair prices from the customers. But what is the definition of fair price? That is not defined anywhere. सब जगह बोला तो जाता कि fair price लेना चाहिए, लेकिन fair price किसको बोलेंगे कहीं define नहीं किया. So everyone interprets it in its own way. ना हर एक का अपना एक purpose होता है, तरीका होता है define करने का इसको. किसी को लगता है कि अगर मैं 10% प्रॉफिट कमाऊंगा तो फेयर प्राइस है, किसी को लगता है 20% फेयर है, किसी को तो 100% में भी लगता है कि फेयर है. सो दैट वे ऑफ डिफाइनिंग दिस फेयर प्राइस इज डिफरेंट. ओके, ऑल राइट. बट सपोज इफ समवन टेक्स मोर प्राइस, है ना, हायर प्राइस, देन देयर इज नो डायरेक्ट पनिशमेंट फॉर दैट. अगर ज्यादा प्राइस लेता तो कोई पनिशमेंट नहीं है उसके लिए.
आजकल आप प्रिंटेड प्राइस में तो बात कर सकते हो, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं एमआरपी लिखा हुआ, चलो एमआरपी ने तो लिमिट बना दी कि एमआरपी पे ज्यादा नहीं ले सकता है, तो एमआरपी तक ले सकता है, लेकिन एमआरपी इज फेयर प्राइस और नॉट, एमआरपी फेयर प्राइस है क्या? कई प्रोडक्ट पर आप देखोगे कि एमआरपी पे 50% तक डिस्काउंट देते हैं आपको, जो बच्चों की आती है ना, कीस है, सैंपल पेपर जो आते हैं, उस पर 40% तक डिस्काउंट मिलता है। किसी सैंपल पेपर पर 200 प्राइस है तो आपको 140 में मिल जाएगा वो, है ना? तो क्या 200 में अगर बेच रहा है तो फेयर प्राइस है क्या वो? ठीक। नो सर। Somewhere it is very confusing concept, so it is more of voluntary in nature. It depends on the attitude of the businessman whether he wants to be ethical or not, है ना? So some businessmen are very ethical, they want to follow the ethics, they want to fulfill the social responsibility. Some fulfill up to some extent so they can fool the law, है ना? कुछ लोग इसलिए फॉलो करते हैं कि लोगों को बेवकूफ बना सकें, इससे लोग सोचे कि खराब, ऐसा नहीं सोचे खराब लोग हैं, उससे बचने के लिए अप टू सम एक्सटेंट दे फॉलो, जब तक वो उनके प्रॉफिट के बीच में नहीं आते उस एक्सटेंट तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करते हैं, और जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके लगता है कि अभी हमारे प्रॉफिट को कम करेंगे, वहां सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देते हैं। एंड सम बिजनेसेस आर वेरी एथिकल, हाईली एथिकल, दे डोंट केयर फॉर प्रॉफिट बट दे फॉलो द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे इंडिया का सबसे नोन बिजनेस हाउस कौन सा है, सबसे ज्यादा अमीर हाउस कौन सा है इंडिया का, जो बिजनेसमैन सबसे अमीर बिजनेसमैन कौन है? रिलायंस अंबानी ना, मुकेश अंबानी बोल सकते हो, अनिल तो वैसे ही गए, अनिल के पास तो बस माँ है ना, बाकी लक्ष्मी माँ तो मुकेश के पास ही है। तो इनका झगड़ा हुआ था बहुत, पता है क्या आपको? धीरूभाई अंबानी और द फादर ऑफ मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी। तो धीरूभाई अंबानी की आप लाइफ स्टोरी पढ़िए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं ना आप लोग, जो फालतू की चीज है वो मत पढ़ो, ये सक्सेस स्टोरी पढ़ो। तो धीरूभाई अंबानी की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली गुजराती ना, धीरूभाई अंबानी जो गुजराती, तो कोयला वोला को बेच के थोड़ा बहुत बिजनेस चालू किया धीरूभाई अंबानी ने, और पेट्रोकेमिकल में आ गया वो, और कुछ 100 रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया। कितनी जनरेशन है अभी? सेकंड जनरेशन है, ध्यान रखो। अभी धीरूभाई अंबानी वाज द फादर ऑफ मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी। तो धीरूभाई अंबानी एस्टैब्लिश्ड दिस होल एम्पायर। एक ही जनरेशन का मैं इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, सोचो आप, एक बंदे ने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया। विद द कैपिटल ऑफ 200 of rupees he started business and now he is the one of the largest firm in the India ना। बिजनेस सबसे शायद बड़ा ही है, सबसे जो रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया में शायद मुकेश अंबानी है मेरे हिसाब से, और कोई हो सकता होगा तो नहीं पता है, मुकेश अंबानी शायद। हाउ कैन दे रीच टू दैट लेवल, है ना? एक आदमी अपनी लाइफ में इतना पैसा, इतना ग्रोथ कैसे ला सकता है? तो धीरूभाई अंबानी की डेथ हो गई तो फिर हर घर में जैसा होता है झगड़ा, जिस घर में प्रॉपर्टी ज्यादा होती है उसमें झगड़े ज्यादा होते हैं, जिस घर प्रॉपर्टी नहीं है वहाँ झगड़े थोड़े कम होते हैं। तो यहाँ भी झगड़ा था, इतनी सारी प्रॉपर्टी होने के बाद भी झगड़ा था। तो झगड़ा हुआ तो इनकी माँ है कोकिला बहन, है ना, कोकिला बहन। तो इनके जो गुरुजी हैं वो रमेश भाई ओझा है। रमेश भाई ओझा का नाम सुना होगा, जो भागवत वगैरह पढ़ते हैं, रमेश भाई ओझा। रमेश भाई ओझा इनके गुरु हैं। तो जब झगड़ा पड़ गया भाइयों को, तो रमेश भाई ओझा ने, इनकी माँ कोकिला बहन ने उनको बुलाया रमेश भाई ओझा को। तो रमेश भाई ओझा ने बैठ के इनका सेटलमेंट, झगड़ा सॉल्व करवाया। तो मुकेश अंबानी को तो बहुत कुछ मिला, लेकिन अनिल अंबानी को माँ मिल गई उस समय। अनिल अंबानी बोला मुझे माँ दे दो, बाकी सब तुम रख लो, है ना। तो माँ जो है वो अनिल अंबानी के पास है। अनिल अंबानी बहुत निकम्मा आदमी निकला, है ना। दोनों भाई हैं लेकिन दोनों की कैपेबिलिटी बहुत अंतर है। मुकेश अंबानी जी ब्रिलियंट बिजनेसमैन, है ना, उसको बोला मिट्टी से भी सोना बना सकता है, वो मुकेश अंबानी के पास दिमाग है। अनिल अंबानी तो सोने को मिट्टी में कन्वर्ट कर दिया, तो कुछ मिला था उसको भी सब लॉस में चला गया लगभग, है ना। तो जो आपके पास पहले था ना, कौन सा, रिलायंस से जियो के आने से पहले रिलायंस का एक नेटवर्क चलता था, रिलायंस का जो नेटवर्क चलता था क्या, वो अनिल अंबानी के पास है। और जियो लेके आ गया कौन? मुकेश अंबानी। और मुकेश अंबानी ने कैसा आइडिया लिया कि हिंदुस्तान के जितने सेट एस्टेब्लिश जो ब्रांड थे सारे के सारे टेलीकॉम के फील्ड में, वो सबको पीछे छोड़ दिया। देखा आपने, चाहे वोडाफोन हो, चाहे आपका जो कौन कौन से थे पहले चलते थे, एयरटेल, सबको पीछे छोड़ दिया उसने, और सबसे आगे निकल गया। सारा जो मार्केट बात कर रहे थे मार्केट शेयर की, पता ना, मार्केट शेयर बिजनेस सब्जेक्ट में, तो मार्केट शेयर फर्स्ट ईयर में उसने 90% मार्केट शेयर कैप्चर किया। एक टाइम तो ऐसा है कि ऐसा लगा कि सर्वाइवल का ही क्वेश्चन खड़ा हो गया, बाकी सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी। और बाकी सारी कंपनियों को फोर्स किया उसने कि यू हैव टू रिड्यूस योर टैरिफ चार्जेस।
पहले पता है हम लोग जब रिचार्ज, आपको भी पता होगा, जो डाटा आप लेते थे उसके लिए, इंटरनेट के लिए, वो 1 GB डाटा मिलता था कितने का, शायद 300-400 रुपीज का मिलता था 1 मंथ के लिए। 300 Yes, sir. 1 GB फॉर 1 मंथ, ध्यान रखना, आप भूल गए होंगे आपको, क्योंकि इतना मिल रहा था, याद नहीं रहता पुराना जमाना। 1 GB फॉर 1 मंथ, पता है आपको कैसे काम चलाते होंगे? तो 1 GB फॉर 1 मंथ। Yes, sir. अब क्या हो रहा है, 3 GB पर डे, 2 GB पर डे, 3 GB पर डे, तब भी लोग बोलते कम पड़ रहा है। ऐसा होता ना, तब भी क्या, अरे डाटा खत्म हो गया, डाटा नहीं बचा, कैसे क्लास अटेंड करेंगे, डाटा खत्म हो गया हमारा। और पहले क्या था, 1 GB डाटा फॉर 30 डेज 28 डेज वो चलता था उसका। अब कॉस्ट कितनी पड़ती थी, 1 GB का 300 था, अभी आपको 3 GB पर डे मिल रहा है, तो मैक्सिमम 600 का करीब आ रहा है, 600-700 का आ रहा है 1 मंथ का पैक, नहीं सॉरी 84 डेज का पैक, 84 डेज 700 मान लो आप, ठीक है, 3 मंथ्स का 84 डेज हो गया। 3 GB मिला तो एक दिन में 3 GB, तो 90 डेज में 270 GB आपको मिल रहा है 700। तो इट इज सब्सटेंशियली रिड्यूस। So because of this competition, who benefited? मुकेश अंबानी ने तो पैसा कमाया, वो तो अलग बात है, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हुआ? क्या हिंदुस्तान में कभी लोग सोच सकते हैं इतना सस्ता डाटा मिलेगा? ठीक है, अब दूसरा बात, हम लोग जब पढ़ते थे तो पहले टेलीफोन उस समय स्टार्ट हुए थे, मोबाइल की बात नहीं कर रहा, लैंडलाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो हर घर में टेलीफोन नहीं होता था, तो एक पीसीओ होता था, पब्लिक कॉल सेंटर होता था ना, वो टेलीफोन की दुकान होती थी एक समय, तो वहां उसके यहाँ जाके फोन करते थे उसके यहाँ से, और उसका पैसा लगता था। उस समय कॉल रेट टाइम के हिसाब से डिपेंड करता था, कि दिन में फोन करोगे तो इतना रुपए पर मिनट है, रात में करोगे तो 11 बजे के बाद जो है रेट हाफ हो जाती थी, तो नॉर्मल टाइम में 3 रुपए 1 मिनट का लगता था, 1 मिनट बात की तो 3 रुपए चार्ज लगेगा, 10 मिनट बात कर ली तो 30 रुपए आपको देने पड़ेंगे किसी वाले को। तो रात में जो है 9 बजे के बाद 25% कम होता था, 11 बजे के बाद हाफ रह जाता था, और 12 बजे 1 बजे के बाद करेंगे तो और कम हो जाता था। लोग 11 बजे के बाद बात करने आते थे टेलीफोन सेंटर पे, इससे कम रेट में बात हो पाएगी, तो वहां लाइन लगी होती थी कॉल सेंटर पर, है ना, और टेलीफोन वॉज वेरी डिफिकल्ट। अब क्या हो रहा है आपको, अब जो 700 का आप पैक ले रहे हैं वो तो इंटरनेट का चार्ज ले रहा है वो, और कॉलिंग तो क्या अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री है आपकी, ठीक है ना, उसका तो चार्ज ही नहीं लग रहा आपको, अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री। दिस इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। सो दिस इज रिवॉल्यूशन इन फील्ड ऑफ टेलीकॉम। तो जिस दिन जियो लॉन्च हुआ उस दिन इंडियन टेलीकॉम मार्केट में रिवॉल्यूशन आ गया। रिवॉल्यूशन मींस ओवरऑल चेंज, सी चेंज। तो दिस इज नॉट ए सी चेंज, ये सी चेंज हुआ कि नहीं हुआ? जहाँ कस्टमर एक्सपेक्ट नहीं करता था, एक कॉमन मैन तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी इंटरनेट यूज करूंगा, और आज देखो कितने सारे इंटरनेट यूजर्स इंडिया में। अच्छा, इसका बेनिफिट हुआ तो ड्रॉबैक भी कुछ हुए। ड्रॉबैक क्या हुआ? अब इंटरनेट बहुत है, मोबाइल भी है घर पे, तो यूज भी हुआ और मिस यूज भी हुआ उसका, और नहीं पार्ट है उसके। टाइम भी बहुत खराब कर रहे हैं बच्चे लोग बैठ के, ठीक है, पढ़ाई का काम करते हैं लेकिन पढ़ाई से ज्यादा दूसरा काम कर रहे हैं, क्योंकि डाटा तो है भाई, इतना सारा डाटा है। सो दैट ऑल इज देयर, बट अल्टीमेटली इट ब्रॉट टू द चेंज। सो मुकेश अंबानी बिकेम वेरी रिच पर्सन। वो जो भी प्रोजेक्ट लेके आता है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाता है ना। अब इसमें भी देखो वो स्कीम लेके आया कि मेंबरशिप लेनी है आपको, जियो का जिसने सिम लिया वो उससे मेंबरशिप लेनी था, 300 रुपीज जमा करने थे जियो की मेंबरशिप के लिए। अब उसके पास सपोज करो 10 करोड़ लोग मेंबर बन गए, 10 करोड़ लोगों से 300 ले लिया उसने, कितना पैसा लमसम कैपिटल इकट्ठी हुई उसके पास में, ना कुछ घर से लगाया क्या उसने, 300 रुपीज पर पर्सन ले लिया, 10 करोड़ लोग आ गए, 10 करोड़ से 300 रुपए से मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है। फिर वो अपना मोबाइल फोन भी लेके आ गया, जो मोबाइल फोन लेगा उसका उसमें उसी की सिम काम करेगी और किसी कंपनी की सिम नहीं काम करेगी। सो दिस वे ही मेड ए कंप्लीट प्लान हाउ टू कैप्चर द मार्केट। अब उसका बेनिफिट कस्टमर को क्या हुआ कि बाकी सारी कंपनीज के सामने क्वेश्चन आ गया सर्वाइवल का, बिकॉज देयर मार्केट शेयर इज बीइंग कैप्चर्ड बाय जियो। उनका पूरा का पूरा मार्केट शेयर किसके पास चला गया? मार्केट शेयर जाने का मतलब क्या हुआ? तो कस्टमर पहले दूसरी कंपनी का मोबाइल फोन यूज कर रहा था या डाटा ले रहा था, वो किस कंपनी से ले रहा है? जियो से लेने लगा। अब बाकी कंपनियों को सर्वाइव करना तो क्या करना पड़ेगा? आपका दो ही ऑप्शन है मार्केट में, या तो उसके बराबर रेट उनको भी ऐसी स्कीम लानी पड़ेगी, या तो उस रेट पे आप दो कस्टमर को, या मार्केट से बाहर हो जाओ। दो ही ऑप्शन थे।
तो बाकी लोगों ने भी वही रेट कम किया। अभी अभी सारे कंपनीज के लगभग टैरिफ रेट तो ऑलमोस्ट सेम है, सबके ऑलमोस्ट सेम है। अब इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है? दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि क्या अभी ये कंपनियां प्रॉफिट नहीं कमा रही? क्या ये सारी कंपनियां भी लॉस में चल रही हैं? नो नहीं सर। सर, नहीं चल रही, मतलब प्रॉफिट कमा रही हैं। मतलब इतना रेट कम करने के बाद में प्रॉफिट कमा रही है, तो उस समय कितना प्रॉफिट कमा रही होंगी? इतना रेट कम करने के बाद भी प्रॉफिट कमा रही है, तो उस समय कितना प्रॉफिट होगा? वॉज दैट ए ड्यू प्रॉफिट और अनड्यू प्रॉफिट? उस समय जो प्रॉफिट कमा रही थी वो रीजनेबल था कि अनरीजनेबल था? सर अब रीजनेबल है। समझ में आया आपको? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रीजनेबल एंड अनरीजनेबल। तो ये कोई डेफिनेशन नहीं है उसकी कि दिस इज द रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। उन्होंने बोला हमारी मोनोपोली है, जिस रेट पे बेचेंगे कस्टमर को तो लेना ही है। कस्टमर को पास कोई चॉइस नहीं थी। एक्स के बाद जाओ तो वो तो गेल जैसी सब्जी मंडी है। गेल की सब्जी मंडी में क्या होता है, सारे वो सब्जी वाले 4-5 आते हैं, पहले से फिक्स कर लेते हैं कि तू यही भाव बता ना, मैं भी यही भाव बताऊंगा, सब एक ही भाव बताएंगे। कस्टमर इसके बाद जाएगा तो कोई रेट बताएगा, दूसरे के बाद बताएगा। कंपटीशन तो है ही नहीं। कंपटीशन नहीं है तो कस्टमर का लॉस है। जिस मार्केट में कंपटीशन नहीं है दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर द कस्टमर। कंपटीशन इज ऑलवेज गुड फॉर कस्टमर। जितना ज्यादा मार्केट में कंपटीशन होगा उतना कस्टमर का बेनिफिट होगा, ये श्योर है। बिजनेसमैन का क्या होगा भगवान जाने, लेकिन कस्टमर का तो श्योर बेनिफिट होगा जब मार्केट में कंपटीशन होगा। तो आपको वैरायटी ज्यादा मिलेगी, प्राइस कम मिलेगा, सर्विसेज अच्छी मिलेंगी। अभी आप टेलीफोन में देखो, पहले बीएसएनएल अकेला था। एक टेलीफोन लगवाने में 6 महीने लगते थे, खराब हो गया तो फिर 6 महीने लगते ठीक होने में, और बिल हर महीने आता था, है ना। अब सब लोगों ने आप बीएसएनएल ढूंढते रह जाओ, किसी घर में बीएसएनएल का टेलीफोन लगा के जाके देखो, बीएसएनएल लगाया क्या मुश्किल से 5% लोगों के पास होगा, सबने हटा दिए। क्यों हटा दिए? क्योंकि सर्विस कंडीशन बहुत खराब है और ऑप्शन मिल गया दूसरा। ऑप्शन जो मिला वो बहुत अच्छा है, सर्विस कंडीशन अच्छी है, रेट बहुत कम है। सो बाय हमारी कोई रिश्तेदारी तो है नहीं बीएसएनएल से, उसी को रखना है। जिसमें अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, कम प्राइस में मिलेगा, हम उसको यूज करेंगे। So that is why this competition is good for customers. So Reliance created this Jio, not Reliance. Jio created competition in the telecom market and it brought overall change in the telecom market. ठीक है, इतना बड़ा चेंज ये लेके आया। So this type of ideas जिनके पास होते हैं, they are genius, है ना। वो मार्केट को एक्सप्लॉइट करते हैं, कस्टमर के पैसे से ही पैसा बनाते हैं, अपने घर से कुछ नहीं लगाते हैं। So, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी जो रियल ब्रदर्स हैं, सक्सेस स्टोरी पढ़ोगे, एक तो पूरा फेल हो गया, लगभग ऑलमोस्ट फेल है, और दूसरा एकदम पूरा वर्ल्ड का रिचेस्ट बनने की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, है ना। सो ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों भाई हैं तो दोनों में सेम एबिलिटीज होंगी। सेम ब्रदर्स और सिस्टर्स मे नॉट हैव द सेम एबिलिटीज, दोनों का अपना अपना डिफरेंट एबिलिटीज है, ठीक। खैर, so this social responsibility, what I am saying, Reliance is the most rich industry house or business house, but it's not most reputed, ध्यान रखना। Reliance और अंबानी are not reputed, इनकी जो इमेज है वो उतनी अच्छी नहीं है। किसकी इमेज है? जब हम एथिक्स की बात करते हैं, एथिकल बिजनेस की बात करते हैं, मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं, टाटा इज द मोस्ट रेपुटेड बिजनेस हाउस, है ना। टाटा जो ग्रुप है दैट इज द मोस्ट रेपुटेड बिजनेस हाउस इन इंडिया। भले वो रिचेस्ट नहीं है ना। एक आदमी होता है ना बहुत अमीर होता है लेकिन समाज में इज्जत नहीं होती, और दूसरा होता है भले गरीब है लेकिन समाज में बहुत इज्जत है उसकी। तो टाटा और रिलायंस का ही फर्क है। रिलायंस बहुत अमीर हो लेकिन समाज में उतनी इज्जत नहीं है उनकी, है ना। लेकिन टाटा की बड़ी इज्जत है, चाहे गवर्नमेंट एजेंसीज हो, चाहे बिजनेस फर्म्स हो, दे रेस्पेक्ट अ लॉट बिकॉज़ टाटा डू द एथिकल बिजनेस, लीगल बिजनेस। क्यों? एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं आपको। जितने भी ये बिजनेसमैन रिटायर होते हैं, है ना, उनका सक्सेसर कौन होता है? रिलायंस का चेयरमैन मुकेश अंबानी के बाद कौन बनने वाला है? कौन बनेगा? सर उसका लड़का। उसका लड़का या लड़की? दो ही जगह था, नेतागिरी और पूंजीपतिगिरी, यही तो ऐसा होता है। नेता के बाद उसकी जगह पे कौन लड़ेगा? उसका बेटा, बेटी या घरवाली, कोई ना कोई तो वही आ जाएगा, बाहर वाले को तो आने नहीं देंगे। सेम थिंग हैपेंस इन इंडस्ट्री। लेकिन टाटा में क्या हुआ? जब रतन टाटा रिटायर हुए, he decided himself that I will retire now. तो खुद डिसाइड किया कि मैं रिटायर होऊंगा, एंड ही डिड नॉट मेड चेयरमैन ऑफ हिज सन और डॉटर। तो जो कौन था उसका, उसको लेके आया था, हालांकि वो हट गया बाद में, चला नहीं पाया। क्या नाम था उसका? सत्या नडेला तो नहीं है उसका, कुछ और है, नाम भूल गया मैं। आपको याद है किसको बनाया था चेयरमैन टाटा ग्रुप का? सो ही अपॉइंटेड हिम चेयरमैन, नहीं वो था
एक सालोंजी पालोंजी ग्रुप है, उसका वो उनका बेटा था सालोंजी। ये दीज आर बेसिकली कौन है, पारसीस है ना, पारसीस इंडिया में गिने चुने रह गए पारसीस। जैसे हिंदुस्तान के जंगल में शेर बहुत कम बचे हैं, ऐसे ही पारसीस भी बहुत कम बचे हैं। तो ये जो है पारसीस आर वेरी रिच एंड बिजनेसमैन। पारसीस बड़े अच्छी कम्युनिटी है, बहुत रिच है, बिजनेसमैन में बहुत है। उसको उसने बताया था, मैं नाम बोल रहा हूँ, उसको बताऊंगा नाम आता है, उसको उसने बनाया चेयरमैन। उसने कमेटी अपॉइंट की कि ये कमेटी सिलेक्ट करेगी हु इज द कैपेबल पर्सन टू रन द टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। रतन टाटा ने खुद के बेटे या बेटी को अपॉइंट नहीं किया कि मेरे बाद मेरा बेटा या बेटी चेयरमैन बनेगा। He appointed a committee, and that committee selected that person, that this person will be the chairman of Tata Group, है ना। तो ये यहाँ होता है, that happens here, ठीक। तो that is the big thing। तो ethics की जब बात करते हैं तो ethical business में टाटा आर ahead than Reliance। Reliance से बहुत आगे है टाटा ग्रुप, है ना। तो this what I am saying, this is a question of voluntarism। It's not a legal responsibility, it's a voluntary responsibility or moral responsibility. Some businesses are highly ethical because they feel that we should earn only a reasonable amount of profit and slowly and gradually we will become rich. And some businesses are not that much ethical, so they only do eyewash, they only follow the responsibility up to that extent, so they are not caught by law। ऐसा नहीं लगे कि चीटिंग कर रहे हैं या फ्रॉड कर रहे हैं तो पकड़े जाएंगे, उससे बचने के लिए इतना करना उतना करते हैं, आगे छोड़ देते हैं उसको। So some businesses follow it fully, some businesses follow it partially, and some businesses do not follow it at all। कुछ बिजनेस तो कहते हैं कि हम तो बिजनेसमैन हैं, हमारा काम समाज सेवा नहीं है, we are not social workers, we are running business for earning profit, हमारा एक ही धर्म है, हमको प्रॉफिट कमाना है ना। So that way, so there are different categories of businesses and different levels of this social responsibility are observed। आप अपने आसपास भी देखेंगे बिजनेस को तो आप क्लासिफाई कर पाएंगे, आपके आसपास के जो बिजनेसमैन उनको आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर आपको ऑब्जर्वेशन आप पता लगा पाएंगे, यू कैन फाइंड इट आउट दैट दिस बिजनेसमैन इज हाईली एथिकल, दिस बिजनेसमैन हैज एथिक्स अप टू सम एक्सटेंट एंड दिस बिजनेसमैन हैज नो एथिक्स एट ऑल। यू कैन फाइंड इट आउट, आप लिस्ट कर पाएंगे कि, और आप समझ भी पाएंगे कि ये बिजनेसमैन बहुत एथिकल है, ये कुछ हद तक एथिकल है, और इसके पास तो एथिक्स जैसी कोई चीज नहीं है, जैसे मौका मिलेगा तो जितना ज्यादा कमा सकते हो उतना ज्यादा कमा सकते हैं। लॉकडाउन इज द बेस्ट पीरियड टू जज। लॉकडाउन तो सबसे अच्छा टाइम है, इसमें आप बहुत अच्छा जज कर सकते हैं कि कौन कस्टमर की मजबूरी का फायदा उठा रहा है कि बाहर नहीं जा सकते तो बेटा यहीं से जो मैं व्हाटएवर आई वांट टू चार्ज आई विल चार्ज, सो दैट यू कैन जज। सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ, ये अंडरस्टैंडिंग हो तो हम जज कर सकते हैं उसको कि कौन एथिक्स। हाँ, एक बात जरूर है, वो जो फॉलो एथिक्स दे रन फॉर द लॉन्ग टाइम। जो एथिक्स को फॉलो करते हैं उस बिजनेस की लाइफ लंबी होती है, और जो एथिक्स को फॉलो नहीं करते दे मे बिकम रिच वेरी सून विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट दे आर बाउंड टू डाई वेरी वेरी सून, ना। वो उनका अंत भी उतनी जल्दी हो जाता है, दे डोंट सर्वाइव फॉर द लॉन्ग टाइम बिकॉज़ दिस एथिक्स क्रिएट्स अ इमेज फॉर द बिजनेस। व्हाट इज द रिवॉर्ड फॉर दिस एथिक्स, है ना। इनडायरेक्ट रिवॉर्ड क्या है इसका एथिक्स का। अच्छा, आप किस पर्सन से रिलेशनशिप रखना चाहोगे, अपना फ्रेंड बनाना चाहोगे जो आपको लगता है अच्छा बंदा है कि जो खराब है। खराब आदमी से कब जुड़ोगे, रिलेशन मजबूरी में रखता है आदमी, कुछ उससे काम निकल पा रहा तो ठीक है, लेकिन जब आपको इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना तो डेफिनेटली आप किसके साथ जाओगे, जो अच्छा पर्सन है। सेम थिंग हैपेंस, कस्टमर किसके पास जाना चाहेगा, कौन से बिजनेस के पास जाना चाहेगा, वो डेफिनेटली उसको लगता है कि अच्छा बिजनेस है, एथिकल बिजनेस है। So customer would like to associate himself, means use the product, goods or services of that business which is ethical, उसके प्रोडक्ट यूज करेगा। So this leads to the long term impact for the business, है ना। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कुछ लोग को ऐसा लगे कि हमने बहुत प्रॉफिट कमा लिया बहुत शॉर्ट टाइम में, but it will not continue for the long time. So that is the overall concept of business ethics, sorry, this social responsibility. So there are three topics are given. पहला टॉपिक है केस फॉर सोशल रिस्पांसिबिलिटी, दूसरा केस अगेंस्ट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। सो देयर आर टू सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। सम पीपल से दैट बिजनेस शुड एक्सेप्ट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, इट इज गुड फॉर द बिजनेस, है ना, इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव इमेज ऑफ द बिजनेस। दूसरा जो सेक्शन है वो कहता है कि व्हाई शुड वी एक्सेप्ट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, वी आर बिजनेस, वी आर इकोनॉमिक एंटिटी, आवर सोल पर्पस इज टू अर्न प्रॉफिट, सो वी शुड नॉट गो फॉर सोशल रिस्पांसिबिलिटी, है ना। सो वी विल डिस्कस आर्गुमेंट्स ऑफ दीस टू सेक्शंस। First section which says we should accept social responsibility,
and section says that we should not accept. So let us see a video on this. Let me share the screen. Responsibilities of business. Hi, I'm Natasha. I am in my first year of college. Some weeks ago, I learned about how important it is for businesses to be socially responsible. Since then, I've started looking closely at the social responsibilities of business. Hi, I'm Natasha. I am in my first year of college. Some weeks ago, I learned about how important it is for businesses to be socially responsible. Since then, I've started looking closely at the businesses in my town. I'm sorry to report that some of these businesses are utterly irresponsible. You can see the different sections towards which business has responsibility: employees, shareholders, consumers, government, community. That is a business deals with many sections, not only with the owners. So these different sections form the society for the business. On each train to learn about some of these negligent businesses. In its pursuit of profit, a business organization must also strive to be socially responsible. Only then will it remain a welcome entity in the social landscape. Here are the key points covered in this media. Okay, this point we will come later. What are the social responsibilities of business towards different sections of society? So this is social responsibility of business. Definition: social responsibility of business implies that the business decisions and actions are taken for reasons at least partially beyond the firm's direct economic or technical interest. No. ये देखो, social responsibility means the obligation to take decisions and perform actions to help achieve the objectives and values of society. This is one definition, good definition. The obligation to take decisions and perform such actions which are helpful in achieving the objectives and values of society. Second, as social responsibility assumes that aspirations of society are respected. Whatever are the expectations of different sections of society, they are being respected. It also contributes to the achievement of profit interest along with the social aspirations. Not only profit should be earned, but interest of other sections of the society are to be respected. Means not only business should work for owners, but business should take care the interest of other sections of the society. Okay. Concept of social responsibility.
though not covered by law, it involves abiding by law. है ना? It is a form of recognition of social obligations. It protects and serves society voluntarily. So मैंने आपको बताया था कि social responsibility, not legal responsibility, but by fulfilling social responsibility, you abide by the law. So if you are making fair practices, following fair rules of business, then you are following the law, or you are avoiding the legal intervention in your business. It protect the interest of the society if you are following the social responsibility. तो ये दिया इसने ट्रेडिशनल जो कंसेप्ट था वो ये था कि बिजनेस का एक ही पर्पज है कि एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस शुड अर्न प्रॉफिट, है ना, बिजनेस गोल्स। अब क्या हो गया मॉडर्न कंसेप्ट में अलग अलग हो गया। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है रिक्वायर्स ऑफ बिजनेस बाय सोसाइटी, रिक्वायर्ड ऑफ बिजनेस बाय सोसाइटी, लीगल में रिक्वायर्ड ऑफ बिजनेस बाय सोसाइटी, ethical expected of business by society, and charitable desirable of business। पता नहीं क्या कह रहा है इसमें। Nature of social responsibility, business is not just a profit making institution, it is a part of society. Business is obligated to contribute to society. It is an important point. As business is a part of society, so business is expected to do something for the society, no? It cannot work only for the owners, but it should also work for the society. By supporting society, a business creates goodwill for itself in the market, increasing its profit. मैंने भी आपको बताया कि अगर आप ethical business है, social responsibility follow करते हैं, तो आपकी market image अच्छी होगी. That will increase your market share and it will increase your profit. So it's a win-win situation for both society and business. दोनों के लिए अच्छा है. If a business follows social responsibility, it is good for both, because customers' interest will be considered, it will be protected by businessmen on the one side, and if customers' interests are protected, customers will be satisfied, and that business can run for a long time, its market share will increase. So it is a benefit to both customers as well as to the business firm. The level of responsibility increases as the business increases. जितना बड़ा business होता है उतनी ज़्यादा social responsibility उसकी होती है, because number of people interacting with that business will increase. जहाँ छोटा business है number of employees कम है, customers कम है, government agency से बहुत उनका कोई interaction नहीं है, but जैसे जैसे business बढ़ता जाएगा वैसे वैसे number of employees बढ़ेगा, customers बढ़ेगा, government agency से interaction होगा उनका, so that way their responsibility will be higher. A business social responsibility continues as long as the business continues. कोई Monday activity नहीं है, it must continue till the business lives. जब तक business चलेगा तब तक उसको social responsibility अपनी follow करनी है. ये point हम पढ़ेंगे बाद में. Arguments for social responsibility and arguments against social responsibility. ना जो लोग कहते हैं कि ये accept करना चाहिए, दूसरा जो group है वो ये है types of responsibilities की हम बात कर रहा था. एक होता है economic responsibility, legal responsibility, ethical and discretionary. This all we will discuss in the next class. Right now I am stopping this presentation and coming back to the meet. Okay, so time is almost over, and that's all for this class. If you want to ask anything, you can ask. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, otherwise we will find it. हाँ भाई, साईराम. Tomorrow also your classes will continue as per your timetable, है ना? जैसा आपका timetable है, उसी के हिसाब से आपकी classes continue रहेंगी. Whatever are the periods that will continue, online as well as offline, both will continue. तो doubt clearing class है, जिसमें आपके में कोई आता नहीं है ना? वो भी रहेगी. अभी एक वीक तो हमारे रोहित कुमार चौकसी ने हमारी कंटिन्यूटी बना के रखी थी. इस वीक में तो गायब हो गया. मंडे को पूर्वी ने थोड़ा उसको कंटिन्यू कर दिया था, वीडियो को पूर्वी नहीं आई, तो आज शायद कोई नहीं, कल कोई नहीं था और आज कोई नहीं था उसमें, तो अभी तक 11 बी में कोई ना कोई तो आ ही रहा था अंदर. ठीक है, नो प्रॉब्लम, दैट इज योर चॉइस. अगर आपको डाउट है और आपको परमिशन है तो आप आ सकते हैं, दैट इज योर चॉइस. ओके, थैंक यू. साईराम. लेट अस हैव शांति पाठ. हाँ जी, बोलो. स्वास्थ्य का नहीं. ओके.
शांति शांति शांति। सैरम सैरम सर। Saram sir.